آداب ناظرین، اردو خبر نامے کے ساتھ میں خالد منتظر آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ وادی میں 107ویں روز بھی ہڑتال، سری نگر کے روایتی اتوار بازار میں ہڑتال کے باوجود لوٹ آئی بہار۔ 10 پولیس اہلکار ڈیوٹی پر غفلت برتنے کی پاداش میں نوکریوں سے برخاست، ایجیک لیڈر کویووانی بھی معطل۔ اور نامساعد حالات کے باوجود سری نگر میں فلموں کی شوٹنگ ہے جاری۔ سری نگر کے مکائی پارک میں دن بھر چلتی رہی تامل فلم کی شوٹنگ۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وادی میں آج 107ویں روز بھی متحدہ حریت قیادت کی طرف سے دی گئی احتجاجی کال کا اثر نظر آ رہا تھا۔ ہڑتال کے باعث وادی کے طول و عرض میں نظام زندگی درم برہمی رہی اور زندگی کی رونق آج بھی نہ لوٹ سکی۔ سری نگر کے مشہور روایتی اتوار بازار میں کام کاج کے شروع ہونے اور عام لوگوں کی خاصی تعداد کی خرید و فروخت کے باعث یہی لگ رہا تھا کہ شاید آج ہڑتال نہیں بلکہ ڈیل کا سما ہے، اور کافی دنوں بعد ریڈے اور پٹریوں پہ کام کاج کرنے والے افراد نے اپنی دکانیں سجائی تھی۔ سری نگر میں ہڑتال کے باعث دکانیں بندی تھی اور سڑکوں پہ آج بھی نجی گاڑیاں ہی دوڑتی نظر آ رہی تھی۔ سری نگر کے برزولا علاقے میں آج فورسز نے محاصرہ کیا اور محاصرہ کر کے گھر گھر کی تلاشوں کا سلسلہ بھی عمل میں لایا۔ تلاشوں کے دوران 2 مشتبہ افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ مقامی لوگوں نے فورسز پر تلاشی کارروائیوں کے دوران گھروں میں موجود سامان اور گھروں کے شیشے توڑنے کا بھی الزام لگایا۔ اننت ناگ ضلع میں بھی ہڑتال کے باعث سبھی کاروباری سرگرمیاں متاثر رہی، تاہم یہاں بھی سڑکوں پہ نجی گاڑیوں کو ہی دیکھا گیا۔ مین ٹاؤن اور حساس مقامات پر انتظامیہ نے فورسز کی تعیناتی بھی عمل میں لائی تھی۔ اننت ناگ کے آنچی ڈورا علاقے میں اس وقت حالات کشیدہ ہوئے اور وہاں پہ حفاظتی انتظامات کو سخت کیا گیا جب وہاں پر نوجوانوں نے جمع ہو کر احتجاجی جلوس نکالنے کی کوشش کی، جسے پولیس نے ناکام بنایا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا بھی استعمال کیا۔ اننت ناگ کے جھی علاقے میں اس وقت فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی جب لوگوں نے اننت ناگ چلو پروگرام کے خاطر جمع ہونے کی کوشش کی اور پولیس نے ان کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا اور پھر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ اننت ناگ کے اچھبل علاقے میں لوگوں نے وادی میں جاری ہلاکتوں اور پیلٹ کے استعمال کے خلاف آج احتجاج کیا۔ احتجاج میں شامل لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں شمع جلائے تھے اور یہ لوگ اپنے حق سے منسوب اور اسلام کے حق میں نعرے بھی لگا رہے تھے۔ بیج بہارا کے پازال پورہ علاقے میں آج تقریباً شام 6 بجے کے قریب مشتعل نوجوانوں نے ایک ٹرک کو آگ لگا دی، جس کے نتیجے میں ٹرک کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لی ہے۔ وادی کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں بھی ہڑتال کے باعث سبھی تجارتی سرگرمیاں متاثر رہی اور زندگی یہاں بھی بحال نہ ہو سکی۔ کلگام ضلع میں بھی وہی صورتحال کی زندگی ہڑتال کے باعث معمول کی پٹری پہ نہ لوٹ سکی۔ ہڑتال کے باعث دکانیں اور باقی تجارتی سرگرمیاں متاثر رہی۔ سڑکوں پہ اگرچہ نجی گاڑیاں ہی رفتار برتی نظر آئی مگر پبلک ٹرانسپورٹ یہاں بھی سڑکوں پہ نظر نہ آیا۔ کلگام کے خور مشی پورہ علاقے میں آج مقامی لوگوں نے احتجاجی مظاہرے کرنے کی کوشش کی مگر پولیس نے اسے ناکام بنایا اور پولیس نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا بھی استعمال کیا، جس کے بعد حفاظتی انتظامات علاقے میں سخت کیے گئے۔ کھوڑونی علاقے میں مشتعل نوجوانوں نے ٹریفک کی آمد رفت کو معطل بنانے کی غرض سے وہاں سے گزرنے والی نجی گاڑیوں کے شیشے توڑے۔ ادھر نیوا پخر پورہ پلوامہ روڈ پہ بھی روہامہ کے مقام پر مقامی نوجوانوں نے سڑکوں پہ نہ صرف احتجاج کیا بلکہ رکاوٹیں بھی کھڑی کی، جس کے بعد ٹریفک کی آمد رفت کافی متاثر ہوئی۔ ادھر پلوامہ کے کریمہ آباد میں بھی مقامی نوجوانوں نے انسانی حقوق کی پامالیوں اور پیلٹ کے استعمال کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے اپنے ہاتھوں میں شمع جلائے تھے اور اسلام اور اپنے حق سے منسوب نعرے لگا رہے تھے۔ آخر میں یہ احتجاجی جلوس پرامن طور پہ ہی منتشر ہوا۔ سوپور میں اتحاد ملت ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں زنگیر، وارپورہ اور بٹینگو اور میرپورہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی۔ ریلی میں مختلف ائمہ مساجد اور مختلف مکتب فکر اور خیالات کے علماء نے تقریر کی۔ علماء نے تقریر کرتے ہوئے لوگوں سے نظم و ضبط قائم رکھنے کی گزارش کی۔ اس موقع پہ لوگوں نے اسلام اور اپنے حق سے منسوب نعرے بھی لگائے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، پہلے یہ تجارتی وقفہ۔ صحافت کی بے باک آواز۔
गवाह एक्सप्रेस, जम्मू कश्मीर का नंबर 1 हफ्ता रोज़ा अखबार गवाह एक्सप्रेस, मारूफ सहाफ़ी शुगुफ्ता खालिदी के बेबाक मज़ामीन और दीगर खबरों के साथ गवाह एक्सप्रेस। रियासी मुलाजमीन के खिलाफ हुकूमत ने अपना कड़ा रुख अपनाते हुए जहां 12 मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ किया, वहीं ईजैक के चेयरमैन अब्दुल कोयूम वानी के हक में मुअत्तली के अहकाम सादर किए हैं। आला तालीम के कमिश्नर सेक्रेटरी की तरफ से कल रात अब्दुल कोयूम वानी की मुअत्तली के अहकाम सादर किए गए और इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में लाइन हाजिर रखा गया है। ये बात काबिल जिक्र है कि कल बाद दोपहर पुलिस ने ईजैक के सदर और उनके साथियों को श्रीनगर में उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो सरकार को घेरने के हवाले से हिकमत अमली मुरतब करने में मसरूफ थे। इधर सरकार ने एक और फैसले के तहत जम्मू व कश्मीर पुलिस से वाबस्ता इन 10 अफराद को नौकरियों से बरतरफ किया है जिनके असला गुज़श्ता शोरिश के दौरान जंगजू ने छीने। पुलिस हेडक्वार्टर्स के ज़राए के मुताबिक मजीद पुलिस एहलकारों की बरतरफी के अहकाम भी सादर हो सकते हैं जिनकी महकमाना इनकवरी मुकम्मल हो चुकी है। पुलिस से हथियार छीनने के मामले पर अब तक जनूबी कश्मीर के 8 मकामात से 28 हथियार छीने गए हैं जिनमें से AK-47, एनसास, SLR और 303 शामिल है। अला पुलिस हुकाम के मुताबिक बरतरफ किए गए पुलिस एहलकारों के खिलाफ इनक्वायरी में ये साफ हुआ था कि इनकी गफलत शारी की वजह से जंगजू इनसे हथियार लेने में कामयाब हुए हैं। पुलिस का मानना है कि जहां पर पुलिस गार्ड की जानिब से मजम्मत की गई वहां से जंगजू हथियार लेने में कामयाब नहीं हुए हैं। मिलिटेंट्स की तादाद में जो इजाफे के खदशे जाहिर किए जाते थे वो सही साबित हुए। हिज़्ब कमांडर बुरहान वानी की हलाकत के बाद वादी में पैदा शुदा सूरत हाल के 52 के करीब नौजवान लापता बताए जाते हैं। खफिया ज़राए के मुताबिक इन नौजवानों ने मिलिटेंट ग्रुप्स में शमूलियत की है। खफिया ज़राए के मुताबिक 34 के करीब नौजवान मौजूदा हालात के दौरान मिलिटेंट्स के ग्रुप्स में शामिल होने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद वादी में जंगजुओं की तादाद 120 तक पहुंच गई है और जिसमें 90 से ज़ायद मुकामी नौजवान बताए जाते हैं। मौजूदा हालात के दौरान मिलिटेंट ग्रुप्स में शमूलियत करने वाले नौजवानों की ज़्यादातर तादाद जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, कुलगाम, शुपियाँ, पुलवामा और अवंतीपोरा इलाकों से है। ज़राए के मुताबिक कुलगाम ज़िले में सबसे ज़्यादा 10 नौजवानों ने मिलिटेंट ग्रुप्स में शमूलियत इख्तियार की है और जनूबी कश्मीर के बाद शुमाली कश्मीर में 20 के करीब नौजवान गुमशुदा बताए जाते हैं। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की रिहाइशगाह पर आज मुख्तलिफ अवामी वफूद मुलाकी हुए। शांगस हल्के इंतखाब से भी अवामी वफूद ने वज़ीर आला से मुलाकात की, जिसकी क़यादत PDP के सीनियर लीडर और साबिक मेंबर कानून साज पीरज़ादा मंसूर अहमद सोहरवर्दी ने की। इस मौके पर हल्के इंतखाब में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों में सूरत लाने के हवाले से वज़ीर आला की खुसूसी तवज्जो मबजूल की गई। वहीं पे वज़ीर आला ने वफ़द को यकीन दिलाया कि इनके मुतालबात को पूरा करने के लिए मुतलका अफसरान को हिदायत जारी की गई है। रियासत के वज़ीर ज़राअत गुलाम नबी लोन हांजुरा की सदारत में आज श्रीनगर में पार्टी वर्करों की मीटिंग मुनक़्क़द हुई, जिसमें अवामी मसाइल का जायज़ा लिया गया। पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए वज़ीर ज़राअत ने कहा कि मखलूत हुकूमत अवामी मसाइल का इज़ाला करने के लिए संजीदा है और लोगों को हर मुमकिन सहूलियत बहम रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत ने जो वादे लोगों से किए हैं उन वादों पर यकीनन हुकूमत वफा करेगी। देखिए, आज मैंने जो यहाँ मीटिंग बुलाई है, ये हल्का इंतखाब शायर शरीफ के हमारे जो साथी है, वर्कर है, उनकी मीटिंग बुलाई है इसलिए कि इनके जो भी मसाइल हैं, जो भी मुतालबात है, वो उनको सुने और उनका हल निकाले। जो हमारे तमीराती काम कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहे हैं या चलने वाले हैं, उनके मुतल्लिक़ यहाँ जिक्र होगा इस मीटिंग में। और सबसे ज़्यादा अहमियत इसके लिए इस मीटिंग की ये है कि जो हमारी तंजीम है इस वक्त, उसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, हमारी सरकार को मजबूत करने की ज़रूरत है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला हिंदुस्तानी हुकूमत के इशारों पर कठपुतली बनकर नाच रहे हैं और उनके बयानात गुमराहकुन है। इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला के बयान कि पाकिस्तान रायशुमारी में रुकावटें खड़ी कर रहा है कहा कि उमर अब्दुल्ला ने यह कहकर साबित कर दिया कि वो कश्मीरियों के गमखार नहीं और पाकिस्तान अपनी साख्त को कश्मीरियों के लिए दाव पर लगा रहा है। जिस पाकिस्तान ने कश्मीरियों के हक की खुद राजत के लिए अपने वजूद को दाव पे लगा दिया, जो पाकिस्तान रात दिन रायशुमारी की बात करता है, हर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने लियाकत अली खान से नवाज शरीफ तक
असम्बली में, जनरल असम्बली में कश्मीर के राजशुमारी की बात की, तो उमर अब्दुल्ला का यह कहना कि पाकिस्तान राजशुमारी में संजीदा नहीं बल्कि रुकावटें खड़ा कर रहा है, दिन को रात कहने के मुतरादिफ है। क्या उमर साहब का यह मतलब है कि पाकिस्तान की जो सरकार है, की जो फौजें हैं, वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान छोड़ दें ताकि हिंदुस्तान वहाँ आके कब्जा कर ले? बिल्कुल हम मानते हैं कि पाकिस्तान को कुछ शराइत माननी है, लेकिन पाकिस्तान मानने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा को एक टाइम बाउंड फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, तब जाके पाकिस्तान अपनी फौजें निकाल देगा। उन्होंने पैलेट गन की बात नहीं की, वहाँ जाके उन्होंने कश्मीर में जो सैकड़ों लोग PSA में बंद है उसकी बात नहीं की, वहाँ उन्होंने ये नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग किन मुसीबतों से इस वक्त सामना कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ जाके वही बातें की जिससे कम से कम नरेंद्र मोदी और दिल्ली की एजेंसियाँ खुश होकर कल महबूबा मुफ्ती को तख्त से उछाल कर उमर अब्दुल्ला को उस जगह बिठा देंगे। लेकिन हम उन्हें कहना चाहते हैं कि कश्मीर की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी, ये किसी फर्द, तंजीम या ख़ानदान की तहरीक नहीं है, बल्कि पूरे कश्मीर के लोगों ने करना से लेके लखनपुर तक कुर्बानियां दी हैं, और इंशाल्लाह हमारी कुर्बानियां ज़ाया नहीं जाएंगी। हम हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान के एजेंट बन के भी बैठना पसंद नहीं करेंगे। PDP के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद पडर ने कहा है कि PDP की कोशिश है कि वादी में अमन बहाल किया जाए और इसके लिए सबसे पहले नूराबाद में ही अमन होकर हम बाकी इलाकों को मिसाल देंगे। कुलगाम में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए पडर ने कहा कि वादी में बंद पड़े स्कूलों से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होने के दर पे है और वो असातिज़ा से गुजारिश करते हैं कि वो स्कूल में दरस व तदरीस का अमल शुरू करें। हमारी पहली इसमें यही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में, तो पर्टिकुलरली कश्मीर वैली में कैसे हम अमन लाने की कोशिश करेंगे। एक पहलू ये है कि हमेशा पानी जो आता है दरिया में वो ऊपर से आता है, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी अमन का पैगाम और अमन का झंडा और अमन जो आएगा वो नूराबाद से ही स्टार्ट होगा। उसी की एक कड़ी हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम बनाया है। एक जानिब जहां वादी में हड़ताल के बाइस मामूल की जिंदगी मुतासिर है, वहीं दूसरी जानिब श्रीनगर के मकाई पार्क में फिल्म शूटिंग भी हो रही है। श्रीनगर के मकाई पार्क इलाके में एक तामिल फिल्म की शूटिंग आज दिन भर जारी रही और इस दौरान लोगों की खासी तादाद फिल्म की शूटिंग देख रही थी। बताया जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पे की जाएगी। पटन के मंडियार इलाके में आज लोगों ने महकमे PHE के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में शामिल लोगों ने बताया कि इन्हें पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी के हवाले से हजारों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इनके घरों तक पहुंचने वाला पानी आलूदा और नाकाबिले इस्तेमाल है। कर रहे तम सफाई अकिस दोन दोहन त्रायक दोन त्रेन दोहन आब, मगर अपील करा गुजारिश करा मेहरबानी कर तो दियो फिल्टर तो आब तो वुचस अम आब से क्या टकनस गो तो सानन बानन क्या गसान तो सानस जिस्मस क्या गस सानस मस्तस क्या गस जिन वना कोई छय मार। गुलिस्तान न्यूज़ ने जो ही इस हवाले से बात की महकमे सेहत आमा के रियासती वजीर से, तो उन्होंने यकीन दिलाया कि 24 घंटों के अंदर ये मामला हल किया जाएगा। सोपोर के बाबा रजा और नसीम बाग के लोगों ने फोर्सेज पर दौरान शब रिहायशी मकानों की तोड़फोड़ का इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि फोर्सेज अहलकार ने हुर्रियत लीडरान अब्दुल गनी भट्ट और शबीर अहमद डार को गिरफ्तार करने की गर्ज से उनके घर पे छापा डाला और घर में उन्हें मौजूद न पाकर नज़ला घर में मौजूद साजो सामान पे उतारने लगे। मुकामी लोगों ने बताया कि फोर्सेज अहलकार घर में मौजूद साजो सामान को तहस नहस कर रहे थे और उसके साथ साथ उन्होंने रिहायशी मकानों के शीशे भी चकनाचूर किए। मुकामी लोगों ने फोर्सेस की जानिब से ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाने का भी मुतालबा किया है। सतलाक मामले पर मुल्क भर में सियासी गलियारों से लेकर मजहबी क़यादत तक बयानबाजी में मसरूफ़ है और जहां सियासी लीडरान इस पर सियासत न करने की बात कर रहे हैं, वहीं इस्लामी लीडरान सहतलाक मामले पर किसी किस्म की तरमीम तजवीज़ को मुदाखलत फिद्दीन करार देते हैं। केसी त्यागी सहतलाक मामले को बीजेपी की कारिस्तानी करार दे रहे हैं और इस मामले के पीछे बीजेपी के सियासी मकासद के कार फरमा होने की बात कर रहे हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड थोपने की एनडीए सरकार की, भाजपा सरकार की नई साजिश है। ट्रिपल तलाक तो खाली बहाना है। सतलाक मामले पर पहले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अदलिया के सवाल का जवाब न देने की बात की है और वहीं बीजेपी के श्रीकांत शर्मा और कांग्रेस के मीम अफजल का मानना है कि यह मामला हुकूक निस्वां से जुड़ा है और इस मामले पर अदलिया की बात ही जवाज रखती है। 3 तलाक का कहाँ पर कोई औचित्य ही नहीं है।
और कुछ महिलाएं कोर्ट में गई थी और वो महिलाएं जब सोनिया जी की सरकार थी तब गई थी और ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने सरकार का पक्ष मांगा है, तो ये महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा विषय है और कुछ लोग इस पर सियासत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वोट बैंक के लिए ऐसे लोगों को सियासत नहीं करनी चाहिए। सीधा सीधा महिलाओं के मौलिक अधिकारों का मसला है, महिलाओं से अधिकारों से जुड़ा हुआ मसला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वेंकैया नायडू साहब को ये समझना चाहिए कि जब सरकार एफिडेविट दे चुकी है और मामला सुप्रीम कोर्ट में निलंबित है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें। इसको पब्लिक डिस्कशन का मौजू क्यों बना रहे हैं? उनका क्या इंटरेस्ट है इसके अंदर? वो पोलराइजेशन की सियासत कर रहे हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह से।